One students, our next lesson is states of matter. Last lesson was chemical bonding and molecular structure. In that lesson, we discussed already about different theories. Mainly three theories are there, that four theories are there. That is Lewis-Coulson theory, valence shell electron pair repulsion theory, and VBT, and next one is MOT. After that, we lastly discussed about hydrogen bonding. Next, fifth lesson, fifth chapter is states of matter. States of matter means what? So last class, अभी तक starting से एक बार chemistry का lessons observe करो. First lesson basic concept of chemistry. Second lesson structure of atom. Third lesson classification of elements. And fourth lesson chemical bonding. तो स्टार्टिंग से लेकर फोर्थ लेसन तक जो भी डिस्कशन किया हम लोग सब एक एटम के बारे में डिस्कशन किया. एटम थर्ड लेसन तक कंप्लीट एटम के बारे में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटॉन, चार्ज, मास एक्सेट्रा वो सब थर्ड लेसन तक डिस्कशन किया. फोर्थ लेसन में जस्ट कॉम्प्लिकेशन के केमिकल बॉन्डिंग, हाउ एटम विल बी getting stability. They will form chemical bonding in between atoms to get octet in its valence shell and it will get stable. And means atom will convert into molecule. That is the matter of fourth lesson. To complete one to third lesson, only atom के बारे में discussion किया. Fourth lesson, atom will be converted into molecule. Next, in this fifth lesson, molecule will be converted into matter, means number of molecules. Then comes matter. तो first lesson में classification of matter discussion किया. Matter means number of group of molecule is equals to matter. So single particle does not behave complete properties. Means for example, वाटर ले लो. वाटर में वाटर क्या होता है? वेटिंग प्रॉपर्टी होता है वाटर. तो वाटर में से एक वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करो. तो वन वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी वेटिंग प्रॉपर्टी. ये ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैविंग वेटिंग प्रॉपर्टी. तो एक्चुअली वाटर वेट होता है बट वेटिंग प्रॉपर्टी होता है. बट वाटर ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में से सिंगल वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करो तो उसका वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद थर्ड फोर्थ इसमें मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करें. द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मैटर. तो मैटर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज साइड फिजिकल प्रॉपर्टीज पर. Based on physical property, matter classified into three categories. First one is gas state, second one liquid state, and third one is solid state. Otherwise solid, liquid, gas state कैसे भी classify कर सकते हैं. These are the classifications based on the physical properties of matter. Right. So here the individual particle does not show its main property. Main property means, for example, wetting property only. Here, for example, water having three physical states. One is solid state, it is in ice form. Second one is liquid state, water H2O, and third one is vapor phase, means gas state. In these three physical state, three different physical properties, but they have same chemical properties. यहाँ पे फिजिकल स्टेट ही चेंज होता है वाटर का. आइस एंड वेपर एंड वाटर तीनों का केमिकल फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होगा बट उसका फिजिकल स्टेट ही चेंज होता है. फिजिकल स्टेट मीन्स बाय सीइंग वी कैन आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज. तो देखने से पता चलता है कि गैस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, कि सॉलिड स्टेट, बट उसका केमिकल फॉर्मूला तीनों स्टेट में सेम ही रहता है. कोई भी सब्सटेंस होने, मैं एग्जांपल वाटर लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कोई भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा. तो यूनिवर्स में जितना केमिस्ट्री में जितना सब्सटेंस है, हर एक सब्सटेंस को डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये थ्री.
तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड होते हैं? थर्मल एनर्जी पे डिपेंड, थर्मल एनर्जी पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल पावर पे डिपेंड। तो H2O forming, water, ice and vapor, ये थ्री स्टेट्स में, तीनों स्टेट में केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहेगा। फिजिकल स्टेट्स आर डिफरेंट, दिस फिजिकल स्टेट बेस्ड ऑन इट्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। वाटर रूम टेम्परेचर पे 36 32 पे लिक्विड पे रहेगी, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस टेम्परेचर रिलेटेड द physical states and kinetic energy also affect the physical state of the substance. In this lesson, we are going to discuss states of the matter. Here, states means only physical state. So, every substance having mainly these three type of states. One is physical state, solid state, solid state. Second one is liquid state, and third one is gas state. In this lesson, we are going to discuss only mainly two states only. That is, one main state is gas state, and second one is liquid state. These two states are discussed. We are going to discuss these two states only in this lesson. And remaining physical state जो है, फिजिकल सॉरी, दिस सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट 12th स्टैंडर्ड में थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट लेसन में वहाँ पर डिस्कशन करना है। तो ये चैप्टर में आपको ओनली टू स्टेट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। वन इज गैस स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट। तो ये लेसन में आपको गैस स्टेट का ही 80% डिस्कशन गैस स्टेट का ही है, रिमेनिंग 20% लिक्विड स्टेट का। तो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे रखना है? गैस स्टेट पे कंप्लीट कॉन्सेंट्रेट करना। ये गैस स्टेट के बारे में डिस्कशन करना। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस थ्री फिजिकल स्टेट्स, एक्चुअली total in universe, total physical states are 5 physical states. One is solid, liquid, gas, and another one is plasma state, and another one is Bose-Einstein condensation state. Total 5 states होता है। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो स्टेट्स हैं, ये दोनों वेरी रेयरली होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। वेरी रेयरेस्ट फिजिकल स्टेट्स एंड रेगुलर फिजिकल स्टेट्स हम लोग ऑब्जर्व करने वाले फिजिकल स्टेट्स कौन से हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। तो ये स्टेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करना है। ओके, नेक्स्ट हियर ऑलरेडी टॉपिक डिस्कशन किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, केमिकल फॉर्मूला में कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन also will affect the physical state of the substance. Rate of reaction. This part is very important. Rate of reaction. Chemical reaction. The rate of reaction. Rate of reaction means speed of the reaction. Speed of the reaction will depend on the physical state of the substance. ये जो rate of reaction है, physical state पे depend होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, लिक्विड स्टेट में जस्ट फास्ट होता है, गैस स्टेट में वेरी फास्ट होता है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल आर रेडी टू रिएक्ट ईच अदर, देन गैसेस मॉलिक्यूल हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, देन नेक्स्ट हाईएस्ट liquid state, and next very slow rate of reaction for the solid state. तो ये सब डिस्कशन नेक्स्ट टाइम तब हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ द रिएक्शन फिजिकल स्टेट पे डिपेंड। नेक्स्ट,
These physical states of the substance will depend on its thermal energy. Thermal energy से ज़्यादा important क्या होता है? Intermolecular attraction force. So last class means first lesson, basic concept of chemistry. First lesson में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का डिस्कशन किया. तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स विल डिसाइड द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. दिस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली. ये सब टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ये तीनों आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको फिजिकल स्टेट के बारे में क्लियरली एक आइडिया समझ में आएगी. ठीक. नाउ हियर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन. Intermolecular attraction forces are very important. When the molecule having intermolecular attraction force maximum, that substance or that matter is belongs to solid state. Intermolecular attraction force minimum, that is belongs to the liquid state. Intermolecular attraction force is negligible, very less, and that is belongs to the gases. This intermolecular attraction force will decide the state of the substance. What is intermolecular attraction force? यहाँ पे हम लोग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के बारे में डिस्कशन. तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किया? फर्स्ट वो डिस्कशन. तो लास्ट क्लास आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन किया. आयनिक बॉन्ड मीन्स टू ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट टू ईच अदर. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा. टू आयन्स होता है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, आयनिक बॉन्ड. अनदर वन बॉन्ड इज देयर, covalent bond. Covalent bond means sharing of electrons and donation of electron equally. That is chemical bond. Ionic bond, chemical bond. But here attractive force, intermolecular attraction force. Chemical bonding जो है एटम के बीच में फॉर्म होता है. अट्रैक्शन फोर्स जो है मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होता है. Intermolecular, after formation of the molecule, in between molecules the attraction force is known as intermolecular attraction force. तो लास्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन किया. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लिमिटेड फॉर द हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ओनली. क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो वन ऑफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ओनली. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, बट this hydrogen will compulsory present in that molecule and it will attract with the highly electronegative atom. It is limited. तो ये ज़्यादा यूनिवर्सल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जब मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यूनिवर्स में जितना मॉलिक्यूल फॉर्म होता है हर एक मॉलिक्यूल के बीच में कंपल्सरी अट्रैक्शन तो जनरेट होगा. रीजन ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो कंपल्सरी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट होता है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है. तो एक पार्टिकल होने दो, एक सब्सटेंस होने दो, एक मॉलिक्यूल होने दो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों हैं, तो ये दूसरे के साथ रिपल्शन होगा, नहीं तो अट्रैक्ट होगा. तो कुछ ना कुछ फोर्स तो जनरेट होगा. तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स. दैट्स व्हाई दिस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्सेस. यूनिवर्सल मीन्स केमिस्ट्री में यूनिवर्स में जितना मॉलिक्यूल फॉर्म होगा हर एक मॉलिक्यूल मीन्स एनी टाइप ऑफ डिफरेंट होने दो, सिमिलर होने दो, कोई भी मॉलिक्यूल्स मिनिमम डिस्टेंस पे आने के बाद उन दोनों के बीच में वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है. दैट टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स. तो ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स किसके वजह से जनरेट होगा? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से जनरेट होगा. This intermolecular attraction force are introduced by van der Waals scientists. That's why these intermolecular attraction forces are known as van der Waals attractions. Van der Waals attraction forces. Van der Waals attraction forces. क्योंकि van der Waals साइंटिस्ट ने ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को डिस्कवर किया. That's why these attraction forces are van der Waals attraction force. Van der Waals attraction forces are universal attraction force. These forces generate between two molecules, maybe similar, maybe different, any molecule. The minimum distance can be van der Waals attraction force generate.
this whatever attraction force will decide the state of the substance. तो ये states के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग intermolecular attraction force के बारे में डिस्कस करेंगे. First one here, this van der Waals or intermolecular attraction forces are further classified into three. That is, first one, intermolecular attraction force are further classified into three types. First one is London forces. London force. Second one is dipole-dipole attraction force. Dipole-dipole attraction. And third one is dipole and induced dipole attraction force. Dipole, induced dipole force. Dipole, induced dipole force. Here also dipole force. Here. These are the three type of intermolecular attraction force will be generated between similar molecule or different molecule, etc. Universal forces होता है intermolecular attraction force. The intermolecular attraction forces further classified into three types. This first one is London force. London force are dispersion forces. London forces को dispersion forces को बताएं. London force are dispersion forces. What is London force and which type of molecule having this type of attraction? The London forces means the London forces. London means here name of scientist. It's London scientist. It's London scientist ने ये dispersion forces को डिस्कवर किया, तो वो साइंटिस्ट के नाम से यहाँ पे ये फोर्स को लंदन फोर्सेस से लंदन फोर्स बताते हैं. कि लंदन फोर्स कौन सा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा? नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट पॉइंट, or non-polar molecule shows this type of London forces. Means non-polar होना चाहिए. Non-polar कब होगा? कंपल्सरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए. कोवेलेंट मॉलिक्यूल में टू सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा तो टू सिमिलर टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों मॉलिक्यूल एटम्स पे. सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहाँ पे डाइपोल्स फॉर्म होने के लिए चांसेस नहीं है. डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. तो दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज नॉन-पोलर मॉलिक्यूल. ओनली नॉन-पोलर मॉलिक्यूल शोस दिस टाइप ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस आर लंदन फोर्सेस. क्योंकि लंदन साइंटिस्ट को डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई दिस डिस्पर्शन फोर्सेस आर नोन एज लंदन फोर्सेस. नॉन-पोलर मॉलिक्यूल में लंदन फोर्सेस प्रेजेंट. एक्चुअली मॉलिक्यूल नॉन-पोलर होगा तो अट्रैक्शन कैसे जनरेट हुआ? तो एग्जांपल यहाँ पे टू मॉलिक्यूल ले लो, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी. तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ एटम्स. तो दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो वहाँ पे क्या होता है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो एक के पास ज्यादा, एक के पास कम, एक ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं. दोनों एटम का अट्रैक्शन पावर सेम है. दोनों एटम का अट्रैक्शन पावर सेम होगा तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. एग्जांपल यहाँ पे टू एटम्स ले लो, सॉरी मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग. तो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी. मॉलिक्यूल ए, another one molecule B.
molecule B. This is the molecule A. Its nucleus molecule B. न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो कुछ अट्रैक्शन पावर नहीं है। कब नहीं है, मीन्स यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कुछ जनरेट नहीं हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किससे जनरेट होगा, ये मॉलिक्यूल ये कॉर्नर पे, ये मॉलिक्यूल ये कॉर्नर पे, ये मॉलिक्यूल वो कॉर्नर पे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो अट्रैक्शन पावर जीरो है, कोई भी टाइप का अट्रैक्शन पावर नहीं होगा। व्हेन these two molecules will come near, ये दोनों मॉलिक्यूल पास में आने के बाद क्या होगा, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन होता है, प्रोटॉन्स की वजह से भी रिपल्शन होता है, ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से एक एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होगा, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, पोलैरिटी वो मॉलिक्यूल में जनरेट, वो पोलैरिटी अदर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा, अदर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करके अब वहाँ पे भी पोलैरिटी को जनरेट करेगा। एग्जाम्पल, ये मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल पास में है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स से समान, ये दोनों मॉलिक्यूल पास में आए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन होगा, बट प्रोटॉन ऑफ वन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट करने के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट छोटा में यहाँ पे प्रोटॉन के हिसाब से एक्सपेक्ट करता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस इस साइड आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस साइड मूव हो रहा है, तो समझो ये इलेक्ट्रॉन उधर मूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होगा तो इसका पॉजिटिव साइन कौन सा डायरेक्शन पे मूव होगा, इस डायरेक्शन पे मूव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियस इस साइड में होगा, तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा, ये जैसे इस साइड आगे रहेगा, तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस भी इस साइड होगा, तो यहाँ से इसका क्या होगा, ये जितना पास में आएगा अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका जो प्रोटॉन है इस लेफ्ट साइड में होगा, पॉजिटिव साइन यहाँ पे, फिर इसका नेगेटिव साइन यहाँ पे रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो स्टार्टिंग में डिस्टेंस इतना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ और कम हो जाएगा, तो कम होने के बाद ये इसका इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, सेम रिपल्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉन इतना पास में जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन राइट साइड में होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, यहाँ पे होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूक्लियस इस साइड, मींस इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, डिस्टेंस अभी ऑब्जर्व करो, डिस्टेंस डिक्रीज हुआ, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज dispersion forces. Dispersion means charges are dispersed, disperse means moving, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो एज वेल एज प्रोटॉन मूव न्यूक्लियस, तो इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे मूव हो, पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरा इस साइड में हुआ, नेगेटिव चार्ज पूरा इस साइड में हुआ, फिर तो ये दोनों पास में आने के बाद न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, when these two molecules come near then this type of mechanism will occur.
create between two molecules, then dipole moment will be generated. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बोल, यहाँ पे पॉजिटिव बोल नेगेटिव बोल, ये दोनों बोल्स क्या हुआ, पास में आ गया, पास में आने के दोनों के बीच में attraction power generate होता है. This type of attraction force is known as London force. London scientists को this is known as dispersion force. Dispersion, यहाँ क्या dispersion हुआ, charges are dispersion. तो क्या charges कैसे disperse हुआ, ये से राइट साइड पूरा नेगेटिव साइन डिस्पर्शन हुआ और लेफ्ट साइड पूरा पॉजिटिव साइन डिस्पर्शन हुआ. पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन डिस्पर्शन की वजह से पार्शियली चार्जेस जनरेट हुआ. तो ये चार्जेस की वजह से वहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस और कम हुआ, अट्रैक्शन पावर जनरेट हुआ. दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्सेस. दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स शोस ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. समझ में आया? Symmetrical distribution of electron cloud on the atoms, molecules. Asymmetrical distribution of electron cloud on the molecules. Atom molecule पास में आने के बाद ये टाइप ऑफ मैकेनिज्म होगा, ध्यान से अच्छा करो. सिंपल इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव हो तो टू इलेक्ट्रॉन चार्जेस क्लाउड उधर मूव, पॉजिटिव साइन इस साइड मूव. तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ और दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन पावर जनरेट हुआ. दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस. ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जांपल H2, O2, N2, F2 etc. ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर कब होगा, कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम में होगा तो नॉन पोलर होता है. ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल dispersion forces are London forces. But next, and another one most important, another name for this force is dispersion forces, and these forces are always attractive and interaction energy inversely proportional to sixth power of the distance between two interacting particles, means 1 upon r power 6, where r is the distance between two particles. These forces are important only at short distance. Means short distance minimum कितना होना चाहिए, 500 पिकोमीटर से लेस होना चाहिए. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 500 पिकोमीटर से लेस होगा तो ये इस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा. नेक्स्ट, and their magnitude depends on the polarizability of the particles. तो magnitude means इन दोनों के बीच में जो attraction power है वो किस पे डिपेंड होता है, size of the molecule पे डिपेंड होता है. Magnitude depends on the polarizability of the particles. ये polarity पे magnitude डिपेंड होता है. Distance and polarizability magnitude पे attraction power डिपेंड होता है. This is the one type of intermolecular attraction force. And next one is dipole interaction force. तो आपको यहाँ पे important point ये है, one type of attraction force आपको clearly समझ में आएगा तो other remaining two forces clearly समझ में आएगा. तो electron distribution symmetrical, asymmetrical due to attraction power. तो यहाँ पे क्या हुआ, पास में आने का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो कोई कुछ दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. तो यहाँ पे एक दूसरे को डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ पे चार्ज डिस्पर्शन हुआ तो डिस्पर्शन फोर्सेस जनरेट हुआ. तो ये डिस्पर्शन फोर्सेस कब जनरेट होगा, मिनिमम 500 पिकोमीटर्स होगा तो ही, उससे कम होना चाहिए उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो ये जनरेट नहीं होगा. क्लियर? And next, main point is attraction. Interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between two interacting particles. Two interacting particle, yeah, particle A, particle B. Particle means molecule to sir of comparison. Next, we will discuss dipole force. That is a second type of intermolecular attraction force. This second type of intermolecular attraction force we will discuss next class. Second type of intermolecular attraction force is dipole force. Dipole force किसमें होगा, only polarity molecule.
those molecule having polarity positive चार्ज नेगेटिव चार्ज मीन्स यहाँ पे क्या होता है ऑलरेडी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एग्जांपल ना ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स HCl होने दो HF होने दो एटसेट्रा ऑल पोलर मॉलिक्यूल शोस दिस सेकंड टाइप ऑफ पोलर पोलर फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स है ये यहाँ पे लंदन फोर्स ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल फोर्स कौन सा मॉलिक्यूल बता रही है ऑल polar molecule shows this type of attraction force. So we will discuss next class. Maybe this class will be on live class. We will discuss. It is 30 को live class होगा. Live में compulsory सब प्रेजेंट होने के लिए ट्राई करो. जो भी डाउट होगा तो क्लियर करूँगा. Right? तो नेक्स्ट लाइव में स्टार्ट होने वाला क्लास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स में सेकेंड टाइप डाइपोल डाइपोल attraction force.